Hello, dear friends, dear well wishers. Welcome back to English with Ishfaq Shafi. Today's topic is about articles. You all must have learned a little bit about articles. But this video is going to be very beneficial, very useful for you because in this video I would like to share some tricks with my friends which will help you in your finals, in your exams, whether you are a student or preparing for any exam. So watch the video till the end. If you don't have time right now, watch the video later, but watch it till the end. And don't forget to share it with your friends. So let's move to the topic. What are articles in English grammar? An article in English grammar is a word that defines a noun as a specific or unspecific. आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा वर्ड है होता है जो डिफाइन करता है कि ये नाउन जो है इज इट स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, इज इट पर्टिकुलर और कॉमन. देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए, एन एंड द are called articles, and these three articles a, an and the are divided into two categories. One is known as indefinite article and the other one is known as definite article. A and an are called indefinite article because they do not refer to any particular or definite person, place or object. For example, a boy, a pen, an umbrella. That is called the definite article because it always points out some particular object. For example, the umbrella he had is stolen. This is the boy who had stolen my book. So here we learn that articles are always used with nouns. So first of all, we must know what are nouns. In common words or in simple words, we can say nouns are naming words. Or we can say anything that exists in this universe that we can touch, that we can feel, that we can see are said to be nouns. As far as counting is concerned, nouns are of two types. One is known as countable nouns, and the other one is known as uncountable nouns. What are countable nouns? Countable nouns are the nouns which can be counted, and uncountable nouns are the nouns which cannot be counted. Countable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और uncountable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते. ठीक है, तो countable nouns ये जो होते हैं इनके सिंगुलर प्लूरल्स होते हैं. क्या होते हैं? सिंगुलर प्लूरल्स. फॉर एग्जाम्पल, पेन, व्हाट इज इट प्लूरल फॉर्म? पेन्स. इसी तरह चेयर, व्हाट इज इट प्लूरल फॉर्म? चेयर्स. ठीक है. सिमिलरली बैग, what is its plural form? Bags. House, what is its plural form? Houses. Umbrella, what is its plural form? Umbrellas. University, what is its plural form? Universities. ठीक है. तो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? पेन, पेनस. इसमें क्या होती है? एक जो है इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन. चेयर, विच मटेरियल वी डू यूज टू मेक ए चेयर? चेयर्स आर मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और आयरन. इसी तरह सीमेंट भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है. वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, एटसेट्रा. ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन्स है, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स. तो हमने क्या सीखा? आर्टिकल्स कितने हैं? 3, ए, एन एंड द. ए और एन जो है इनकी मीनिंग क्या है? 1, एक. तो इसका मतलब है यहां पर हमें समझ आता है कि ए और एन का अगर मीनिंग क्या निकलता है? 1. तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है. ए और एन किन के साथ इस्तेमाल होता होगा? फिर काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए. ठीक है, दैट मीन्स कि प्लूरल्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है. ठीक है,
तो जब हम छोटे थे तो बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था, दैट देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट and these 26 letters are divided into two categories. One is known as consonant letters and the other one is known as vowel letters. Consonant letters are 21 and vowel letters are 5. And A, E, I, O, U. These are 5 letters. These are 5 vowel letters. तो हमें बचपन में ये सिखाया जाता था, if a word begins with vowel letter, we use article N with that word, and we use article A with the word which begins with consonant letter. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई वर्ड वावेल लेटर से स्टार्ट होता है उस वर्ड के साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं. ठीक है, सिंपल फंडा. तो ये देख लो, पेन. व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ पेन? पी. इज पी अ कॉन्सोनेंट लेटर और वावेल लेटर? कॉन्सोनेंट लेटर. व्हाट डू वी यूज विद वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट लेटर्स? ए, a pen. Chair, C, is also a consonant letter. A chair. Bag, a bag. House, a house. Umbrella. What is the first letter of umbrella? U. Is U a consonant letter or vowel letter? Vowel letter. What do we use with the word begins with vowel letters? An umbrella. University. What is the first letter of university? U. Is U a consonant letter or vowel letter? Vowel letter. What do we use with the word begins with vowel letters? An. So, an university. But ये गलत है. क्यों? क्योंकि umbrella जो है, it begins with U, but giving the vowel sound a. umbrella. a जो है ये एक vowel sound है. ठीक है, और university also begins with the vowel letter U, but giving the consonant sound y. क्या देता है आपको पहला साउंड? य. यूनिवर्सिटी. तो य जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने इसके साथ क्या इस्तेमाल किया? ए यूनिवर्सिटी. तो सबसे बड़ा फंडा क्या है? साउंड्स का. एंड देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दीज 44 साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. वन इज नोन एज कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड द अदर वन इज नोन एज वॉवेल साउंड्स. देयर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 vowel sounds. And these vowel sounds are further divided into two categories. One is known as monophthongus and the other one is known as diphthongus. वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कहां पर कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना है. ठीक है, अब ये देख लो, अभी तक हमने क्या सीखा कि आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है वो काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, अगर स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट लेटर से तो आर्टिकल ए आएगा, और अगर स्टार्ट होता होगा वावेल लेटर से तो आर्टिकल एन लगेगा. तो द जो है ये किन के साथ इस्तेमाल होता है? आर्टिकल द जो है वो काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल्स के लिए भी, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है. ठीक है, अब एक चीज याद रखो, अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे और काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स दिए होंगे, और अगर हमें उनके साथ आर्टिकल लगाना होगा तो उस स्थिति में हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द लगाएंगे. ठीक है, और आर्टिकल द जो है वो इनके साथ भी इस्तेमाल होता है. और जब हम आर्टिकल द काउंटेबल नाउन के सिंगुलर फॉर्म्स के साथ लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर बन जाते हैं, वो खास बन जाते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है, तो ये उसको कोई पर्टिकुलर नहीं बनाता है. लेकिन जब मैं कहता हूं दिस इज द बॉय हु हैड स्टोलन माय बुक, तो ये उस वक्त पर्टिकुलर बन जाता है, ये वो लड़का है जिसने मेरी बुक चुराई थी. ठीक है, लेट अस सी द यूसेज ऑफ आर्टिकल्स. व्हाई टू यूज आर्टिकल ए, व्हाई टू यूज आर्टिकल एन, एंड व्हाई टू यूज आर्टिकल द. First of all, we will see the usage of article A.